Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and this is my second video on relational database management system, and today's topic is some general terms or say terms regarding database. We generally use these terms while working with database, and the terms are table, field name, record, tuple, degree, coordinate, data, and the last one is primary key. I repeat once again. First term is table, second is field name or say column name or say attribute. Field name, column name and attribute. Then record or say tuple, degree, coordinate, data and primary key. These terms are very useful while working with database or say while working with tables. Let's understand these terms one by one with the help of table. Let's suppose this is my table. I'm going to copy it, then where is my paint? This is my paint. I'm gonna paste over here. Now, let's suppose this is my table. And the table name is EMP cell. This is my table name. EMP cell is my table name. Let's understand these terms one by one with the help of table. Now, first term is table. What is table? A table is a collection of rows and columns. Table is a collection of rows and columns. C-O-L-U-M-N-S, columns. Table consisting of records. Second thing is table consisting of records. Let's understand. Table is a collection of rows and columns. These are called columns. EMP or say EMP name, department, basic salary, HRA, DA, PF, net salary, annual salary and income tax. These are called columns. ना ये पूरा कॉलम कह रहा है, ये भी कॉलम. And these are say rows. रोज आपके हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, कॉलम्स आपके वर्टिकल वे में होते हैं. तो इनका एक कलेक्शन होता है और उस टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं. These are called records. जो ये डेटा है, these are called records.
तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैविंग सम रिकॉर्ड्स, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट टर्म फील्ड नेम, also known as headings, used to store record. Each table has at least one field name. Each field name has its own data. Let's understand. See, these are called field names, or say column names, or say field name. Field name, or say headings. Headings जितने भी हैं या तो ये फील्ड नेम कहलाते हैं या हेडिंग्स कहलाते हैं, बट सॉफ्टवेयर डेटाबेस में हम इसे कॉलम नेम या फील्ड नेम कहते हैं. जनरल टर्म्स में हम इसे हेडिंग्स हम यूज करते हैं, ये टर्म हेडिंग्स, बट हम इसको जनरली जानते हैं आपके फील्ड नेम से. तो जितने भी ये कॉलम नेम हो गए ये आपके फील्ड नेम्स हो गए. जितने भी हैं ये आपके फील्ड नेम्स हैं. और क्या कहता है ये? हेडिंग्स यूज्ड टू स्टोर रिकॉर्ड्स. हर कॉलम का अपना एक रिकॉर्ड है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है. हर कॉलम का अपना एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है. It means fields are the columns. These fields are the columns containing one type of information. One type of information means let's suppose EMP name is a field name containing only name of employee, not other than that. It contains only employee name. In the same way, department contains only departments of organization for employee. Basic salary contains basic salary. It does not contain EMP name or say EMP number. That's why fields are the columns containing one type of information. Each table has at least one field name. It means कि जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे विदाउट हेडिंग तो कोई क्रिएट हो नहीं सकती है. इट मीन्स कि अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको एटलीस्ट एक फील्ड नेम तो रखना ही पड़ेगा, भले ही आप बाकी ना रखें. अदरवाइज आप डेटा किस में पुट करेंगे जब तक हेडिंग ही नहीं होगी, जब तक फील्ड नेम ही नहीं होगा. लेट्स सपोज हमने आपको ये फॉर्म दे दिया और बोला कि फिल करो, तो आपको क्या मालूम है कि क्या फिल करना है जब तक हम आपको हेडिंग ना दें. लेट्स सपोज कि अब हम आपको हेडिंग दे देते हैं. यहाँ पे हेडिंग दे दी एज, तो अब आप यहाँ पे एज पुट करोगे. इट मीन्स कि एटलीस्ट एक हेडिंग या एक फील्ड कॉलम नेम पक्का होना चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज कुछ भी क्रिएट नहीं होगा. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो क्या आप इसको ये फॉर्म भर लेंगे अपने हिसाब से कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं? नहीं पता चल रहा है ना. इसलिए एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन फील्ड नेम, एक फील्ड नेम का होना जरूरी है. नेक्स्ट, अ रिकॉर्ड. वन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड, आल्सो नोन एज टपल. रिकॉर्ड को हम टपल के नाम से भी जानते हैं. You know this. Records are the rows. These are the rows. Records are the rows representing one complete information. It represents one complete information. One particular row, contains one complete information. For example, if I am talking about this Mohit Rana, then his employee number is EMP07, department name is purchase, and his designation is clerk,
and these are the various package in order to get his annual salary. He has basic salary, HRA, and DA, PF, net salary, etc. Now, this is called a record. Each row represent a complete record of individual person, a complete record of individual thing. Next, that is called degree. The number of fields present in a table, or say it tells about number of attributes, a number of fields present in a table. It is called degree. Let's suppose this is our table. This is our table. Now count the field names. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So degree of the EMP cell table is 11. It means that degree tells about the number of field name, the number of columns, or say the number of attributes present in a given table. So the degree of the above table is 11 because it contains 11 field names. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, 11. So degree of the EMP cell table is 11. Next concept. Next concept is said cardinality. Now, cardinality. Degree tells about columns present in a table, but cardinality tells about number of rows, or say number of records in a table excluding headings or field names. It means cardinality tells about number of rows, or say number of records present in a table. It excludes above first row, because first row is for field names, or say attributes, or say column names. Now it tells about number of records present in a table. Now count the records. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means there are 10 rows present in a table. So cardinality of EMP cell table is 10. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? Cardinality above table क्या है? 10 है, because it contains 10 records. Now next is data, or say data items. Data are raw facts and figures, or say it is the smallest unit of information. Data is the smallest unit of information. Let's suppose this is our data manager. It's a smallest data, or say information regarding EMP2 for his designation. Let's suppose कि अगर यहाँ पे ये चीज नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है यहाँ पे ऐसे, तो हमें क्या मालूम कि ये क्या है, किस फील्ड का है? तो हम ये कहते हैं कि डेटाज आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर हम वहां पे कोई फील्ड नेम लगा देते हैं तब वो मीनिंगफुल हो जाता है, अदरवाइज वो रॉ फैक्ट्स ही रहेगा. अपने हिसाब से उसका मतलब लगाते रहिए जब तक आप हेडिंग पुट नहीं करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज very important concept, that is your primary key. Primary key.
every table must have a primary key. एक प्राइमरी की होनी चाहिए. अब प्राइमरी की होता क्या है? इट इज अ की whose values are unique in nature. जिसकी वैल्यूज या जिसका डेटा यूनिक इन नेचर होगा, यानी कि वो डेटा अपने आप को रिपीट नहीं करेगा. वो ऐसा इसलिए रखा जाता है किसी भी टेबल में प्राइमरी की कि हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आप लोगों को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और उसकी आपका रजिस्ट्रेशन जैसा, आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन जैसा और किसी को वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक इन नेचर. जो अपने आप में एक ही होगा, उसके जैसा और दूसरा कोई नहीं होगा. अनदर एग्जांपल, योर आधार नंबर इज यूनिक इन नेचर, योर टेलीफोन नंबर इज यूनिक इन नेचर, योर पैन नंबर, योर account number, bank account numbers, your email IDs, they are unique in natures. एक ईमेल आईडी दूसरा का हो नहीं सकता, वो आप ही का रहेगा. हाँ, पासवर्ड उसके सेम हो सकते हैं, पर ईमेल आईडी, आधार नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, इवन बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय नंबर, बैंक अकाउंट नंबर्स, दे आर unique in nature. And through account number, bank notify you, आपको पहचान सकता है your account number. So these this unique value, or say these unique values are identify your particular record, or say records. Note, in a table there may be more than one field having unique values. किसी भी टेबल में एक से ज्यादा ऐसे फील्ड नेम है जिसकी वैल्यूज यूनिक इन नेचर है, तो उस केस में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्राइमरी की बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में अगर हम EMP नेम की बात करें, हम सभी कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि यूनिक इन नेचर कौन सा आ रहा है. सी, रियल लाइफ में हम देखेंगे कि नेम आपके रिपीट होते ही होते हैं. जैसे स्कूल में, क्लास में हम बात करें तो एक नाम से ज्यादा हो सकते हैं. तो रियल लाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये यूनिक इन नेचर नहीं बन सकता है. डिपार्टमेंट यूनिक इन नेचर नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई अकाउंट जरूरी नहीं कि एक डिपार्टमेंट में एक ही जना काम करो, एक डिपार्टमेंट में कई जने काम कर सकते हैं. डेजिग्नेशन भी सेम होते हैं, बेसिक सैलरी भी सेम होती है, HRA सेम होता है, नेट सैलरी, इनकम टैक्स भी सेम होता है. नाउ जब हम बात करते हैं EMP नंबर की, तो ये यूनिक इन नेचर होगा, ये अपने आप में रिपीट नहीं करेंगे ये चीजें. ओके, लेट्स सपोज कि ये एम्प्लॉय नंबर है और ये यूनिक इन नेचर है, क्योंकि हर किसी का यूनिक इन नेचर होता है. लेट्स सपोज कि मैं एक और फील्ड नेम यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट. देन एक और फील्ड में अरेंज कर रहा हूं, दैट इज पैन नंबर, PN, पैन, या आधार नंबर, AD, आधार. ठीक है, ये नंबर. अब यहां पे क्या है कि यहां पे भी रिकॉर्ड आएंगे आपके, ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया. यहां पे फिर आपके रिकॉर्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक. तो यहां पे क्या है कि इस टेबल में आपके मोर देन वन ऐसे फील्ड नेम है जिनकी वैल्यू यूनिक इन नेचर आएगा. जैसे आधार नंबर यूनिक इन नेचर, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है कि यूनिक ना हो, बिकॉज हो सकता है कि आपके परिवार के 2 जने एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक नंबर भी काम कर जाएगा. बट फिर उस केस में ये आपका प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी. जैसे हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक फोन नंबर उन्होंने दे दिया, तो रिपीट इन नेचर हो गया ना, वो रिपीट हो रहा है. जबकि प्राइमरी की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. जैसे आधार नंबर, अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, फिर भी उनका आधार नंबर अलग अलग होगा. इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पे पैन लिख देता हूँ, तो पैन नंबर भी सबका अलग अलग होगा, अकाउंट नंबर सबका अलग अलग होगा.
तो यहाँ पे फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्राइमरी की बनाएंगे, ईएमपी नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे या आधार नंबर को या पैन नंबर को, या है ना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्राइमरी की बनाएंगे. सो these are some basic terms regarding database. Okay students, bye.